सो टुडे वी आर डूइंग नाउन्स एंड इट्स टाइप. सो जैसे कि मैंने बोला था कि डिटेल वीडियो नाउन पे जल्दी आएगी. सो हेयर इज़ अ डिटेल वीडियो ऑन नाउन. व्हाट इज़ बेसिकली अ नाउन. तो हमने जो ट्रिक्स वाली वीडियो में देखा था कि एन से नाउन स्टार्ट होता है एंड एन से ही नेम्स. तो बेसिकली नाउन जो होते हैं वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होते हैं. बेसिकली दे आर नेम्स of person, place, animal and things. So here are some examples. She is Neha. I love the animal reindeer. I am going on a trip to England with my parents. It is a pen. So all these words which are underlined here, these are names. Okay. Pen is the name of thing, England is the name of place, reindeer is the name of an animal, and Neha is the name of a person. So these are nouns, name of person, places, things or animals. Now let's move to its types. So actually there are not 4, this is an error. There are 5 types of noun. Okay, what are the 5 types of noun? Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Okay, so let's understand them one by one in detail. So these are the 5 types of noun, very easy: proper, common, collective, material and abstract. Now let's move to proper noun. Proper noun refers to the name of a particular person, place or thing. प्रॉपर नाउन किसकी बात करता है? प्रॉपर नाउन बात करता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करें या पर्टिकुलर जगह की बात करें. पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक, एक पर्सन की बात हो रही हो या एक जगह की बात हो रही है या एक चीज़ की बात हो रही है. और अगर हमें किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन रिकग्नाइज़ करना है तो इसको एक रिकग्नाइज़ करने का बहुत अच्छा तरीका एक ये है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओके, so as you can see in examples, I reside at Delhi. Where is Mohit? Both Delhi and Mohit are starting with a capital letter क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. ठीक है, इसलिए that's why they are proper noun because they are referring to the name of a particular person and place. Now let's move to common noun. वॉट यू मीन बाई कॉमन? कॉमन मीन समथिंग जनरल. तो कॉमन नाउन जो है वो कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्लेस और थिंग ऑफ अ काइंड एंड रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप. काइंड मतलब एक टाइप के पर्सन को, एक टाइप की प्लेस को और एक टाइप के थिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसके होल ग्रुप को. जैसे कि बॉयज़ हो गया या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम उन्हें स्कूल्स बोलते हैं या कॉलेजेस बोलते हैं, तो वो कॉमन नाउन्स में आ जाते हैं. सो लाइक दिस कॉमन नाउन्स में बहुत जनरल चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, जैसे कि यू कैन से पेन आ जाएगा, बॉयज़ गर्ल्स आ जाएंगे. एंड क्राइंग इज़ नॉट सॉरी नाउन. वाई इज़ इट अंडरलाइंड? क्राइंग इज़ नॉट अ नाउन. सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स. Some boys and girls are going to school. School is a common noun. Some boys and girls are going to school. The dog runs after the cat. The child was crying. So boys, girls, school, dog, cat, child are all common nouns here because they represent any person or you can say any place but of a certain kind, of a certain type. Okay, so let's move to common nouns. Include very general things. Okay, names of very general things. Collective noun. Now collective noun refers to a group of people, animal or things. Means basically the name of group. Okay, अब वो ग्रुप पीपल का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है या चीज़ों का भी हो सकता है. ठीक है, प्लेसेस का ग्रुप नहीं हो सकता है बिकॉज प्लेसेस आर ऑलवेज सेपरेट. वी सॉ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड.
He saw a flock of deer in the forest. Our class has won the contest. We have a joint family. Herd of cattle, flock of deer, class, family, ये सब ग्रुप डिनोट करते हैं, ठीक है. These are all denoting groups, certain groups. Suppose I can say constellation. तो constellation किसको डिनोट करती? ग्रुप ऑफ स्टार्स को. Like this. So it refers to group of people, animal or things. Now we come to material noun. So basically we can know from the name only कि material noun will talk about the names of material. So it refers to a matter or substance which other things are made of. जो भी चीज़ें हैं वो किन चीज़ों से बनी है, क्या उनका मैटर है, क्या सब्सटेंस उनका किससे बनी है, वो मटीरियल नाउन उनके नेम्स के बारे में बात करता है. द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. वो चेयर वुड की बनी हुई है. चेयर जो है इट इज़ मेड ऑफ वुड. आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल. आयरन एक मटीरियल है. यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि वो उसने क्या बना रखा है, बट वी कम टू नो दैट आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल. एक सिंपल ट्रिक इसको रिकग्नाइज करने की ये है कि जहाँ पे भी आपको मटेरियल का नेम दिख जाए वो हो जाएगा मटेरियल नाउन. सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी कॉस्टली. क्लॉथ किसका बना हुआ है? सिल्क का. मटेरियल कौन सा है? सिल्क. सो यू कैन recognize the material and then you will be able to know the material noun. Abstract noun जनरली ये लोगों को काफ़ी ट्रिकी लगते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी होती है हर जगह, या फिर कभी कोई वर्ड मेंशन कर दिया होता है कि ये आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फीलिंग्स को या किसी और चीज़ को. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वेरी ईजी. ओके, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो चीज़ें हम टच नहीं कर सकते, तो ये उनके नेम्स को डिनोट करती है. Ideas, feelings or qualities. Please think, can you touch ideas? Can you touch feelings? Or can you touch qualities of someone? No, we can't touch qualities जैसे joy, happiness, sadness. तुम उसको हाथ में भर के लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते. क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है. ओके, they just exist as a thought. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के बारे में बात करता है. बेसिकली नेम्स ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़. अगर हम स्पेसिफिक वे में बोलें तो जो भी नेम्स ऑफ आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में. क्वालिटीज़ जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी. सॉरी, मैंने पहले क्वालिटीज़ बोल दिया था. हैप्पीनेस, सैडनेस वो फीलिंग्स थी. ओके, फीलिंग्स या इमोशंस यू कैन से, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. तो म्यूज़िक फिल्स अस विद जॉय. दिस इज़ अ फीलिंग. जॉय. अब क्या कोई जॉय टच कर सकता है? नो. म्यूज़िक कोई टच कर सकता है? सो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज ये एक आइडिया है, इसे हम टच नहीं कर सकते. राइट. ऑनेस्टी एक क्वालिटी है. क्या तुम उसकी क्वालिटी निकाल के खुद में डाल सकते हो कि हाँ भाई मैं भी अपने में ऑनेस्टी डाल लूँ? नहीं कर सकते हम ऐसा. ठीक है. रेसिज्म शुड बी फॉरबिडन. रेसिज्म एक आइडिया है, एक प्रैक्टिस है. क्या हम रेसिज्म को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो नेम ऑफ आइडिया, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़ जो होती हैं वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड यू कैन रिमेंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट ओनली. इट मीन्स द थिंग्स यू कैन नॉट टच, थिंग्स दैट एग्जिस्ट इज थॉट और आइडियाज़. ओके, सो हेयर योर नाउन्स gets over. Noun and noun types. I hope you are very clear with nouns, and if you have any doubt related to nouns, kindly write in the comment section. I will clear them. Secondly, if you liked my video, please give it a thumbs up. Please share and subscribe. Please share the video and subscribe to my channel. Okay, and thank you so much for watching.